میں نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حیات سے ایک چیز لی تھی. دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں, رحم و کرم میں بے مثال نبی, سجود و سخا میں بے مثال نبی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ قارون جو بہت خزانوں کا مالک تھا, بڑے پیسے والا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دے دینا. زکوٰۃ ان کے زمانے میں ان کی امت پر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ 1/4 یعنی 25% دینا پڑتا. اب قارون کے خزانے بہت تھے, 70 اونٹوں پر تو صرف خزانوں کی چابیاں رکھی جاتی تھی, اتنا مالدار تھا. اس نے کہا میرے لیے رعایت کر دی جائے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی اور رعایت یوں کرائی کہ 1000 میں 1 روپیہ دے دے. اتنی آسانی کر دی گئی. اس حساب سے بھی جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے. دینے کا ارادہ نہیں ہوا. مال بڑی خطرناک چیز ہے, کبھی کسی کے ہاں آ جائے تو کبھی دین اور ایمان بھی لے جاتی ہے, اخلاق و کردار بھی لے جاتی ہے. لیکن دعا یہ کرنا مال آئے تو عثمان غنی کا مال آئے, ابو بکر صدیق کا مال آئے, پھر کروڑ پتی بھی بنو, کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں, اللہ اور رسول سے غافل کرنے والا مال نہیں آنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا, قارون نے ایک عورت کو پیسہ دے کر کے زنا کا الزام لگانے کے لیے محفل میں حاضر کیا اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے. نبی پاک پر توہین, الزام, بہتان. عورت بارگاہ میں حاضر ہوئی, سب مجمع میں قارون کھڑا ہوا اور پوچھا زنا کی کیا سزا ہے. میرے موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ اس کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا جائے. اس نے کہا اگر آپ کریں تو معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. اللہ کے نبی, کوئی چھوٹا عیب بھی نبیوں پر نہیں آ سکتا, زنا بہت دور کی چیز ہے. اس نے اشارہ کیا عورت کو کہ کھڑی ہو جا, بتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے. وہ کھڑی تو ہوئی لیکن بول نہ سکی, تھر تھر کانپتی رہی. اور اس کے بعد کہا مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے. جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلال آیا, آپ نے زمین کو حکم دیا اے زمین پھٹ جا اور اسے نگل جا. زمین پھٹ گئی. قارون زمین کے اندر دھنستا رہا. دھیرے دھیرے اس کے پیر گھس گئے, کمر تک آ گئے. اس وقت اس نے کہا موسیٰ تم مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے رکوا دیا, پھر حکم دیا اے زمین اس کے سارے خزانوں کو نگل جا. زمین پھٹ گئی, سارے خزانے تہس نہس ہو گئے. آج مصر کی سرزمین پر فیوم ایک جگہ ہے, وہاں پر بحیرہ قارون ایک جگہ ہے جہاں پر یہ سارے خزانے دھسا دیے گئے. اب وہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, ریت ہے یا پانی. اب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے دھسانے کا حکم دیا. زمین نگلتی چلی گئی, نگلتی. گردن تک آنے پر اس نے پکارا اے موسیٰ معاف کر دو, اے موسیٰ معاف کر دو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی کیونکہ اس نے زنا کی تہمت لگائی, اور تھوڑی دیر میں وہ زمین میں دھس گیا اور ختم ہو گیا. ایک واقعہ اپنے ذہن میں یہ رکھو, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان پر تہمت لگایا اور اس نے انجام دیکھ لیا. اب یہاں پر آئے مکہ مکرمہ کی سرزمین, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے مشرکین تلواریں سونتے کھڑے ہوئے. حضور ان کے درمیان سے نکل کر کے مدینے کے راستے پر چلے گئے, اور مدینہ طیبہ جب جانے لگے, عرب کے بڑے بڑے رئیسوں نے اعلان کیا کہ جو محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو ڈھونڈ لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. بڑے مہنگے ہوا کرتے. اب ڈھونڈنے کے لیے لالچی لوگ ہر جگہ پھیل گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے جو عام راستہ نہیں تھا. پھر بھی ایک شخص سراقہ نام کا حضور کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ ہی گیا. تیر اور ترکش اس کے پاس تھے. کمان میں تیر ڈالا اور تیر لگانے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے قریب آنے لگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اسی طرح اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین پھٹ گئی. سراقہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا, گھٹنوں تک اندر چلا گیا. اب اس کے بعد اس نے پکار کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو پوری زندگی دیکھا, آپ شریف ہیں, ابن شریف ہیں, ابن شریف ہیں. آپ کے باپ, آپ کے دادا سب جود و سخا اور کرم والے لوگ ہیں. مجھے معاف کر دیں, مجھے معاف کر دیں, میں لالچ میں آ گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھسائے نہیں, زمین سے کہا اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے. جو جان لینے آیا
हुजूर ने क्या फरमाया, सुराका को छोड़ दे। जमीन हट गई और सुराका के पैर निकल आए। वो जब निकल आए, बाहर चलने लगा। मेरे आका अपना सफर तय कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद सुराका की नीयत फिर खराब हुई, दोबारा फिर हुजूर का पीछा किया। हुजूर का पीछा करते हुए करीब आया। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये फिर आ गया। मेरे आका ने पीछे देखा और फरमाया, ए जमीन, सुराका को पकड़ ले। दोबारा जमीन फट गई, अब कमर तक धंस गया, कमर तक धंस गया। और उसके बाद फिर चिल्लाने लगा, रोने लगा, ए मोहम्मद, आप करीम इब्ने करीम हैं, सखी इब्ने सखी हैं, आप शरीफ नफ्स हैं, आपसे कभी किसी ने बुराई नहीं देखी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरे आका ने पलट करके देखा और कहा, जमीन सुराका को छोड़ दे, जमीन सुराका को छोड़ दे। जमीन फिर फैल गई और सुराका के कदम वहां से निकल गए। एक तरफ अता ही अता है, ये है शान मुस्तफा। मेरे अजीजों, सुराका को तो आप जाना था, चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद तीसरी बार फिर नीयत खराब हुई। एक है मेरे मुस्तफा, आजादी पे आजादी देते हैं और दुश्मन फिर हमला पे हमला करना चाहता है। तीसरी मर्तबा आ गया कि आप किसी और रास्ते से आकर पकड़ लो, 100 ऊंट कहां छोड़ूंगा, लालच। मेरे आका ने तीसरी मर्तबा देखा, फिर फरमाया, जमीन सुराका को पकड़ ले। जमीन फट गई, अब गर्दन तक चला गया। अब तीर और तरकश तोड़ दिया और कहा, अब सच्ची तौबा करता हूं, अब तो मुझे माफ कर दो। अब सुनो मेरे अजीजों, मेरे आका ने अब क्या किया, अब क्या किया, आप सिर्फ छोड़ा नहीं बल्कि देखा और कहा, सुराका तो पीछे से पीछे लगा हुआ है सिर्फ 100 ऊंट के लिए, 100 ऊंटों के इनाम के चक्कर में तू मुझे गिरफ्तार करने आया। लेकिन मैं तो देख रहा हूं तेरे हाथ में कैसर और किसरा बादशाह के कंगन आने वाले हैं। कैसर और किसरा बादशाह उस जमाने के सुपर पावर ताकतों का नाम था। जिस तरह आज अमेरिका और रशिया को कहते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन कहा जाता है उस जमाने में ईरान और रोम को सुपर पावर कैसर और किसरा कहा जाता था। और उन बादशाहों के यहां सोने के कंगन पहने जाते जो दुनिया के सबसे महंगे। और वो सुराका को मेरे आका फरमा रहे, मैं तेरे हाथों में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूं। इतना सुनना था, उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह। वो कलमा तैयबा पढ़ा। अब वो जो गिरफ्तार करने आया था दामन इस्लाम में आ गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी जान निछावर करने को तैयार। अब वो सहाबी रसूल हैं, उनकी बारगाह में हम एक जुमला भी नहीं कह सकते। अजीजा ने गिरामी, यही शान मुस्तफा मुझे अर्ज करनी है। कहीं लोग मारे जाते हैं या अगर किसी नबी को जलाल आया तो हिलाक कर दिए जाते हैं, मगर मेरे मुस्तफा का जूदो सखा ऐसा है कि लोग अगर जान भी लेने आए, मेरे मुस्तफा उन्हें माफ करके हमेशा अपनी गुलामी में कबूल फरमाते हैं। एक दो नहीं, वो उमर इब्ने खत्ताब जो तलवार लेकर मेरे आका की गर्दन मारने जा रहे थे, लेकिन करीब पहुंचने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तलवार रखी और अपनी गर्दन भी रख दी और हमेशा के लिए मेरे आका के होकर रह गए। एक दो नहीं, हजरत खालिद बिन वलीद जो हुजूर के मुकाबले में जंगे उहद लड़े और वहां पर मुकाबला किया। अबू सुफियान कितनी जंगे लड़े, लेकिन आखिर में मेरे आका की गुलामी में आ ही गए, इसलिए कि चेहरा ही कुछ ऐसा था मेरे आका का, दुश्मन भी देखता तो कहता ये झूठे का चेहरा हो नहीं सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब जो बात मैं कह रहा हूं, सिर्फ मेरे आका ने फरमाई नहीं दिया कैसर और किसरा के कंगन। हुजूर की वफात हुई, अबू बकर सिद्दीक की भी वफात हो गई, खिलाफत फारूकी आई, हजरत उमर का जमाना था। उस जमाने में इस्लामी फौजें ईरान पर चढ़ाई की और रोम पर भी हमला किया। कैसर और किसरा दोनों की हुकूमतें खत्म हुई और वहां से जो माले गनीमत था वो मदीना लाया गया। कैसर और किसरा के वो कंगन भी लाए गए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, हजरत सुराका रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बार हजरत उमर की खिलाफत के जमाने में बहुत शदीद बीमार हुए, इतने शदीद बीमार हुए कि लोग आखिरी बार उनको देखने के लिए आने लगे कि अब इनकी वफात करीब है। जब लोग जमा हुए घर में, हजरत सुराका ने जलाल में कहा, क्यों आ रहे हो तुम लोग, सब वापस जाओ, मैं मरने वाला नहीं हूं, तुम समझ रहे हो मैं मर जाऊंगा। लोगों ने कहा आपकी हालत बहुत नाजुक है, वफात करीब आ चुकी, आपकी ऐसा नज़ा का आलम लगता है। हजरत सुराका ने कहा खबरदार, मेरी मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक मैं अपने हाथ में कैसर और किसरा के कंगन ना देख लूं। इसलिए कि किसी और ने नहीं कहा, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया। उनकी तबीयत सही भी हुई,
सेहतयाब भी हुए। और हजरत उमर के जमाने में कैसर और किसरा को फतह किया गया और वो कंगन लाए गए, हजरत उमर की बारगाह में पेश किए गए। हजरत उमर ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह से ये सुना था कि ये कंगन सुराका के हाथ में डाले जाएंगे, ये ले जाओ ए मुसलमानों, ये अमानत है। और ले जाकर के हजरत सुराका को पहनाया गया। मेरे मुस्तफा की जुबान से जो बात निकली वो हो कर रही, चाहे दिन बर्बाद हो, साल बर्बाद हो, 100 साल बाद हो, लेकिन इतनी बात याद रखना, जमीन टल सकती है, जमाना टल सकता है, मेरे मुस्तफा का फरमान कभी टल नहीं सकता। हजरत सुराका को कंगन मिलने के बाद फिर उनकी वफात भी हुई। अजीजान गिरामी वक़ार, मैं गुफ्तगू तवील न करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये है कि उनका खुदा खुद बयान करे, और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुनिया में शान ये थी। लोगों ने हातिम ताई की सखावत बयान की। हातिम ताई के कई दरवाजे थे, जिस दरवाजे से आदमी जाता उसे हातिम ताई दे देता था, नवाजता था। लेकिन लोगों ने कहा, रसूल पाक की बारगाह में जब कभी कोई आता तो एक ही दरवाजा था। लोगों ने यह कहा, इधर एक दरवाजा और हातिम ताई के 7 दरवाजे। किसी आशिक ने क्या खूब जवाब दिया, ऐसा कैसा हो सकता, सखी हैं, हातिम ताई से बड़े सखी हैं, उसके तो 7 दरवाजे थे, इनका तो एक दरवाजा था। आशिक रसूल ने कहा, मियां हातिम ताई के 7 दरवाजे इसलिए थे कि एक दरवाजे से पेट नहीं भरता साइल का, दूसरे दरवाजे पर जाता, दूसरे में पेट नहीं भरता, तीसरे पर जाता, तीसरे में पेट नहीं भरता, चौथे में जाता। वो 7 दरवाजों के चक्कर इसीलिए लगाता कि एक दरवाजे पर पेट नहीं भरता। मेरे मुस्तफा का एक ही दरवाजा ऐसा है, इतना दिया जाता है कि अब साइल के पास दामन भी तंग होता है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इसमें एक बात मैं अर्ज कर दूं, बड़ी लगती हुई बात है, मीलाद करीब आ रहा है, हम सब के लिए इलाज भी है, दवा भी है। मैं तकरीबन हर मीलाद में इस हिकायत को बयान करता हूं। सआदतुद दारैन में मौजूद ये हिकायत ईमान अफरोज है। एक गरीब आदमी, मुफलिस आदमी, कर्ज में डूबा हुआ, परेशान हाल, कई लोगों के कर्जे लिया हुआ आदमी था। और उसके जो कर्जदार थे उन्होंने पैसे मांगे, जब वो दे नहीं सका तो काजी इस्लाम जो उस वक्त थे उनके पास मुकदमा कर दिया कि ये हमारे पैसे लेता है, खा जाता है, देता नहीं। काजी ने बुलाया और कहा, क्यों नहीं देता? कहा, गरीब आदमी हूं, पैसे नहीं है। कहा, ये बहाना नहीं चलेगा, इन लोगों के जो तूने कर्जे लिए, कर्ज में डूबे हुए लोग जो आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं, सुन लो, बुज़दिल ना बनो, जान तुम्हारी बड़ी कीमती है। कर्ज में अगर आज डूबे हो, मियां अंधेरा आने के बाद उजाला भी रब्बे जुलजलाल ही लाता है। जिंदगी में अगर अंधेरा आया तो डरना नहीं, कल की सुबह होने वाली है, सूरज तो निकलेगा। अब वो कर्जदार को काजी ने कहा, 3 दिन का टाइम देता हूं, अगर इनका कर्जा दे दिया तो ठीक है, वरना तुझे जेल में डाल दूंगा, जेल में भेज दूंगा। छोटे छोटे बच्चे थे, बीवी थी, रोता हुआ बाहर निकला। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, पूछा क्या बात, बताया ऐसा ऐसा मामला है, कर्ज में परेशान हूं। उस बुजुर्ग ने कहा, कोई बात नहीं, दुनिया में तुझे अगर तकलीफ हुई